اہل سلوک کا آداب مرید جو ہے پہلا سٹیپ ہے پیری اور مریدی کے اندر. تو بہرحال آئیے کچھ باتیں ہم سماعت فرمائیں گے ادب کے متعلق. اگر ادب کو پڑھ کر غفلت برتے گا تو باطنی نعمتوں سے تو محروم رہ جائے گا. اور یہ ادب حضرت خواجہ محمد عبد الملک صدیقی سے منقول ہے جو اب میں سنا رہا ہوں. وہ ادب جو آپ کے سامنے آئے ہیں وہ سلطان وارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. بزرگ کوئی بھی ہو وہ میرا یار ہی میرا پیر ہی کہہ رہا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو شجر طیبہ سے انہیں من و عن نقل کیا گیا ہے اور تشریح کے لیے فائدے عنوان سے کچھ اضافہ کر دیا گیا ہے. جس جگہ کچھ لوگوں کچھ جگہ گھٹا دیا گیا ہے کچھ جگہ اضافہ کر دیا ہے خالق کو تاکہ مرید کو بآسانی سے بات سمجھ میں آ سکے. گویا بامر مجبوری قائلین کو ٹاٹ کا جو خالین کا مطلب جو ہے کارپیٹ جسے کہتے ہیں کارپیٹ کو ٹاٹ کا پیون لگایا گیا ہے. اب ادب سماعت فرمائے. مرشد کی ظاہری حیثیت قومیت اور حشمت اور شوکت اور پیشے وغیرہ پر نظر نہ کریں. سمجھ میں آیا؟ ظاہری حیثیت قومیت کا مطلب میرا پیر جو ہے کون سی زبان میں بات کرتا ہے کون سی جو ہے اس کا بول چال کیسی ہے وہ کون سے قوم سے ہے اس کی حشمت اس کی عزت اس کی بڑائی اس کا واہ واہ. اب کیا ہے لوگ کیا ہے جس کی بڑائی زیادہ ہوتی ہے دنیا میں اس کے مرید بننا زیادہ پسند کرتے ہیں. اس کی شان و شوکت اس کا پیشہ اس کا کاروبار وغیرہ پر نظر نہ کریں اور اسے حقیر نہ جانیں. اگر وہ روپے پیسے میں یا علم میں یا پھر جو ہے فیض پہنچانے میں آپ کو دیری کرتا ہے پھر بھی جو ہے آپ اس کو حقیر نہ جانیں بلکہ اس نعمتوں کا فیضان کو جو اللہ تعالیٰ نے شیخ کو عنایت کیا گیا ہے وہ نگاہ میں رکھ کر اسے حق کی معرفت کا وسیلہ سمجھے اور کمال صدق یقین سے اس کی صحبت کا فیض اٹھائیں اور شیخ کی باطنی دولت کو پیش نظر رکھیں. حقیقت یہی ہے کہ پیاسا آدمی کو ٹھنڈے پانی سے غرض ہوتی ہے. پیاسے کو ٹھنڈے پانی جب مل جاتا ہے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے اور اسے پرسکون ماحول سے مطلب سمجھتا ہے وہ اور اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ پانی مٹی کے پیالے سے ہے یا سونے کی مٹی کے چمکتے ہوئے برتن میں ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ پانی پی کر اس کو اطمینان حاصل ہونا. سمجھ میں آیا؟ رہی بات قومیت کی تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا قَبَائِلٍ تَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تو سورہ حجرات کی 113ویں آیت ہے. ہم نے تمہیں شاخیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. اب ہمارے خانوادے ہیں 4 پھر 14 خانوادے ہیں بھلے کوئی بھی خانوادے کا کوئی بھی مرید کیوں نہ ہو کوئی بھی سلسلے کا کیوں نہ مرید ہو ہم ایک دوسرے کے آپس میں جو ہے بھائی ہیں. اللہ کی ہاں عزت والا متقی پرہیزگار ہے اور یہ نہیں کہ میرا سلسلہ بڑا ہے تیرا سلسلہ چھوٹا ہے تیرا پیر اچھا ہے میرا پیر خراب ہے. نہیں یہاں کون پروردگار کے سامنے اچھا ہے جو متقی پرہیزگار ہے وہی جو ہے قدرت کے سامنے اچھا ہے. روایت ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی سے بیعت لی. کس سے؟ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی سے بیعت کی تو ایک صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب آپ نے سید ہو کر ایک چاٹ سے بیعت کی ہے ایک ایسے گرے ہوئے سب سے نیچے طبقے کے لوگوں سے بیعت کی ہے. تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا میں جاٹ دا بنا ساوا ٹھاٹ اے میں نے زمیندار کی کھیتی سرسبز شاداب دیکھی اور لہٰذا بیعت کی ہے. تو پنجابی زبان میں وہ الگ محاورہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں زمیندار ہوں میں زمین کو جو ہے اس کی کھیتی دے کر میں خریدا نہیں بلکہ میں کچھ اور دے کر میں نے اس سے بیعت کی ہے.
तो दूसरा अदब का जो है दूसरा, इसको गौर से समाप्त फरमाएं, या अगर लिख सकते हैं तो लिख कर रख लें, या फिर जो है मैं हमारे इरफान सरवरी से कहता हूं कि मेरे दो लाइन जो है इसे हर रोज इसको डाल दिया करें व्हाट्सएप में, एक अच्छी पुस्तक में, एक अच्छे इसमें बनाकर आदाब मुरीद कहकर जो है एक दो लाइन इसमें पेश करें। दूसरा अदब का जो है दूसरी लाइन क्या है, शेख को अपने पीर मुर्शिद को अपने हक में सबसे नफा देने वाला, सबसे नफा ज्यादा देने वाला समझें, और ये एतमाद रखें कि मेरी इस्लाह बातिन कराने वाला, मेरे हुसूल मारिफत का मतलब समझाने वाला, और मेरे हक को पहचानने वाला, और मेरी खुदा और बंदे की पहचान कराने वाला, और बंदे को खुदा से मिलाने वाला, ये मेरा मुर्शिद है। अब ऐसा समझने के बाद हरजाई ना बने, अगर दूसरी तरफ तवज्जा करेगा तो फैज व बरकत से महरूम रहेगा। हरजाई का मतलब दोगला ना बने। अब तीसरी बात है, हर तरफ से पीर मुर्शिद की मुताय और फर्माबरदारी, मुताय बोले तो तवज्जो होना, फर्माबरदारी करना, उनका ताबे होना, मुताय का मतलब ताबे होना, मुता और फर्माबरदारी रहे, क्योंकि पीर की अकीदत और मोहब्बत के बगैर फैज का दर नहीं खुलता। पीर को जो है, पीर के अंदर से पीर को मोहब्बत करने से और उसे सच्ची अकीदत रखने से, देखिए अकीदत क्या है, अकीदे वाले अलग हैं, अकीदत वाले अलग हैं। अब लोग कहते हैं कि हमारा अकीदा है बुजुर्गान दीन को मानने का, हमारा अकीदा है तबलीगी जमात का, हमारा अकीदा है अहले हदीस का। अब ये अकीदा किससे निर्भर है, जिससे तुम मोहब्बत करते हो। अब हमारी मोहब्बत अहले बैत से है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, समझ में आया, साहबे कराम से है, औलिया उज़्ज़ाम से, मशाइख उज़्ज़ाम से, सूफिया कराम से है, और हमारे पीर से है। अब हमारे पीर का जो है अकीदा है वो हमारा अकीदा है, क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं। तकाजा यही है कि उसकी इताअत और खिदमत हमेशा कायम रहे। चौथा, हस्ब इस्ताअत, हमारी ताकत के मुताबिक। हस्ब इस्ताअत का मतलब हमारी ताकत के मुताबिक जान और माल से पीर की खिदमत करें, और इस पर एहसान ना जताएं। जितनी हमारी ताकत है उतना जो है हमें उनकी खिदमत करें और एहसान ना जताएं, बल्कि अपने पीर मुर्शिद का एहसान समझकर इसने खिदमत को शर्फ कबूलियत बख्शा है। ये पीर मुर्शिद का एहसान है कि तुम जो है पीर मुर्शिद की तुम खिदमत कर रहे हो, क्योंकि पीर मुर्शिद ने तुम्हें हिदायत दिया है अब अपनी खिदमत करा लेने का। क्योंकि बहुत सारे मुरीदन हैं जो करना चाहते हुए भी कर नहीं पाते, जो कर रहे हैं वो बड़े खुशनसीब हैं। तो पीर मुर्शिद से किसी किस्म की तमा या मुतालबा ना रखें। तमा का मतलब तकब्बुर, मुतालबा का मतलब हमें जो है उनसे कुछ एक चीज देकर एक चीज लेना, यानी कि नियामत अज़मा का मुतालबा, खिलाफत का मुतालबा, और करम का फैज का मुतालबा। ऑटोमेटिक जो पीर मुरीद जिस ढंग से, जिस यकीन से, जिस अकीदे से, जिस अदब और एहतराम के साथ पीर के सामने पेश आता है, पीर मुर्शिद उसी तरह उसको फैज पहुंचाता है। जितनी भी खिदमत करें खुलूस व लिल्लाहियत से करता रहे, ताकि कमाल और ईमान से बहरोमंद हो जाए। पांचवा, मुर्शिद के फरमान को फौरन बजा लाएं। मुर्शिद के हुक्म को मैं इसको सबसे पहले दर्जे में रखता हूं। जो पांचवा है, मुर्शिद के फरमान को फौरन बजा लाएं और इसके फेल की इक्तदा करें। देखिए, फेल अफवाल दो चीजें हैं। फेल का मतलब उन्होंने जो काम करते हैं उसके ऊपर जो है हमेशा अपनी यकीन रखें कि ये जो कर रहे हैं बिल्कुल जो है ये सही कर रहे हैं और मेरा फायदा है इसमें।
और उनकी इजाजत के बगैर ना करे। कोई भी काम जो है उनकी इजाजत के बगैर ना करे, क्योंकि बाज़ औक़ात वो अपने हाल और मकाम के मुनासिबत से काम करते हैं। जो मुरीद के लिए इसकी इस्तादा ताकत से आला, मतलब उसकी पहुंच से आगे होने की वजह से वो नहीं समझ सकता। अलबत्ता कौली जबान से जो कहते हैं उसका जो है हमेशा पाबंद रहे, ताकि पीर से मोहब्बत की मुनासिबत पैदा हो जाए। छठवां, पीर मुर्शिद की मौजूदगी में हमा तन उनकी तरफ मुतवज्जा रहे, यहाँ तक के फर्ज और सुन्नत के सिवाय नवाफिल नमाज या कोई वजीफा आपकी इजाजत के बगैर ना पढ़े, बल्कि उनकी सोहबत कीमियाए असर को गनीमत समझें। सोहबत कीमिया असर, देखिए सोहबत एक ऐसी चीज है जिसमें बड़े से बड़ी बीमारी हो। ये जो दिल हमारा है, ये दिल कोई दवा से जो है अच्छा होने वाला नहीं है, कोई हवा से अच्छा होने वाला नहीं है, कोई फूक से अच्छा होने वाला नहीं है। लेकिन पीर की सोहबत एक ऐसी चीज है, इसको कीमिया को असर रखती है। यह गनीमत समझकर शेख की निगाह शफकत हासिल करते रहे और उनके फैज़ व बातिन से नफा हासिल करते रहे। मशाइख कादरी सरवरी फरमाते हैं कि शेख की मौजूदगी में फौकियत क़ल्बी के बजाय राब्ते क़ल्बी, अब यहाँ पर जो ज़ाहिरी दिल है तुम्हारा, उसके बजाय जो बातिनी दिल है उसे राब्ता रखे हमेशा अपने पीर के दिल को, तुम्हें ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। फिर सातवां, पीर और मुर्शिद की सोहबत में बाअदब होकर निहायती आजिज़ी से खामोश आपके सामने बैठे रहें और उनके कलाम खुदसी की निहायत गौर से सुनता रहें। फिर मैं दोबारा फरमा रहा हूं, पीर मुर्शिद की सोहबत में बाअदब होकर निहायती आजिज़ी के साथ खामोश बैठे रहें और उन्होंने जो कलाम करते हैं, यानी कि जो बात करते हैं, उसको बड़ी मोहब्बत के साथ, अकीदे के साथ, बड़े गौर व फिक्र के साथ सुनते रहे, इधर उधर ना देखें और उनकी इजाजत के बगैर कलाम ना करें, बात ना करें। बवक्त जरूरत मुख्तसर कलाम करें, निहायती तवज्जो से जवाब का मुंतजर रहें। जो तुम पूछना चाहते हो बड़े आजिज़ी और अंकसारी के साथ उनसे बात करें, उनसे सवाल करें और बड़ी मोहब्बत के साथ, तवज्जो के साथ जवाब का इंतजार करते रहें। गुफ्तगू आहिस्तगी और नरमी से करें, बल्कि अपनी आवाज पीर व मुर्शिद की आवाज से बुलंद कभी ना हो पाए, क्योंकि बात ऐसी ना कहें जो पीर की तबकी और गिरानी का सबब बने, क्योंकि पीर को शर्मिंदगी और पीर की जो है आवाज से बुलंद तुम्हारी आवाज हो गई तो बुजुर्गान दीन जो है आपसे नाराज हो सकते हैं। तो ये सबब है कि कोई अपनी आवाज को पीर की आवाज से बुलंद ना रखे। आठवां, पीर मुर्शिद की मजलिस में अपने आप को किसी तरह मुमताज ना करें। पीर मुर्शिद की मजलिस जब बैठते हैं तो हर मुरीद ये जाने कि मैं सबसे छोटा हूं, मैं सबसे कमजोर हूं, मैं सबसे कमीना हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं सबसे हकीर हूं, मैं सबसे हकीर हूं। न्याजमंदी और तिश्नगी अपने दिल में तलब रखें और आपकी नजरों से नजरें मिलाकर हर वक्त ना देखें, क्योंकि तुम्हारा देखना पीर को बेशक बहुत जो है जरूरी है, लेकिन पीर व मुर्शिद का तुम्हारी तरफ देखना तुम्हारे लिए जरूरी है या नहीं है वो पीर ही जानता है। नौवां, पीर व मुर्शिद की नशिस्तगाह
यानी कि खानका में जब यहाँ बैठते हैं वो नशिस्तगाह होती है। जब एक दो चार लोग बैठ जाते हैं पीर और मुर्शिद के साथ, कुछ बातें होती रहती हैं, उसे नशिस्तगाह कहते हैं। या फिर जो है मुसल्ला, जहां पर नमाज पढ़ते हैं, जहां पर पीर को बैठने की जगह है, उसको नशिस्तगाह कहते हैं। पीर और मुर्शिद की नशिस्तगाह पर ना बैठें, उनके मुसल्ले पर पांव ना रखें। 10वां, बगैर इजाजत के सामने खाना ना खाएं, ना पिए, ना वजू करें, ना उसे उनके बर्तन इस्तेमाल करें, और इसकी तहरत और वजू की जगह तहरत या वजू ना करें, जो आदाब पीर और मुर्शिद के बरखिलाफ है। पीछे भी बजा लाए, जो सामने आदाब बजा लेते हैं उनके पीछे भी इसी तरह आदाब बजा लाए, ताकि तुम खास इखलास नसीब हो जाओ। जो मुरीद पीर और मुर्शिद के आदाब जिस तरह बजा लाता है, उस तरह अगर पीछे भी बजा लाता है तो मुरीद जो है पीर और मुर्शिद का खास मुरीद होता है। 11वां, जिस जगह पीर और मुर्शिद तशरीफ फरमाते हैं, इस तरफ पांव ना फैलाकर आप बैठे, उनकी तरफ मुंह कर कर ना थूके, अगरचे तुम दूर ही क्यों ना बैठे हो। तुम्हें मालूम हुआ कि मेरे पीर और मुर्शिद फलानी जगह है, तो उनकी तरफ मुंह करके भी ना थूके। 12वां, पीर और मुर्शिद के आगे ना चलें, पीछे चलने में शर्म ना करें, बल्कि पीछे चलने में अपनी सादत समझें। 14वां, जब पीर और मुर्शिद खड़े हो तो मुरीद को भी खड़ा हो जाना चाहिए, और इसके बैठने के बाद बैठें, वरना वो बेअदबी कहलाएगा। 15वां, पीर और मुर्शिद के रूबरू पसे पिश्त एक्स्ट्रा रहें। पसे पिश्त का मतलब सामने और पीछे एक ही तरह का अदब करें। अपना जाहिर और अपना बातिन एक तरह पर रखें, यानी दिल और जबान के दरमियान किसी किस्म का फर्क ना रखें। 16वां अदब, पीर मुर्शिद के तमाम अखवाल और फेल को रास्त जाने। रास्त का तो भलाई का रास्ता, एतराज ना करें, दिल में शक व शुबा ना लाएं। अगर कोई बात समझ में ना आए तो अपने ऊपर हमेशा हजरत मूसा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा याद कर ले कि खामोशी में तुम्हारी भलाई है। 17वां, पीर मुर्शिद की सख्ती और डांट पीट से दिल तंग ना हो, बदगुमानी को राह में ना आने दें, क्योंकि पीर मुर्शिद की सख्ती मुरीद के लिए सखील का काम करती है। सखील का मतलब और करीब लेकर आती है। जब पीर मुर्शिद जो है तुम्हें डांटता है तो तुम्हें अपना समझकर डांटता है, तुम्हारी भलाई के लिए डांटता है, और उससे जो है तुम्हारे रास्ते, राह सुलूक के रास्ते खुल जाते हैं। 18वां, दिल में कोई शुबा गुजरने की सूरत में फौरन मुनासिब तरीके से अर्ज कर दें। अगर वो शुबा का हल ना हो तो अपनी फहम का कसूर समझें। क्या मतलब? अगर तुम्हारे दिल में पीर मुर्शिद के ताल्लुक से कोई वहन गुमान शक व शुबा अगर आ गया तो पीर मुर्शिद से मिलकर फौरन जो है उसका हल निकाल लें। अगर पीर मुर्शिद से मिलकर हल निकालने का तुम्हें वक्त नहीं मिला तो अपने ही अक्ल की या नजर का कसूर समझें। अगर पीर मुर्शिद कोई जवाब ना दें तो जान ले कि मैं जवाब के लायक नहीं था।
मैं अभी कच्चा हूँ, मैं अभी बच्चा हूँ। ये सवाल बहुत बड़ा है, इस जवाब के लायक मैं नहीं हूँ। जब वक्त आएगा तो इसका जवाब मुझे मिल जाएगा, ये यकीन रखें। 19वां, मुबाहसे और झगड़ा वगैरह की सूरत ना बनाए। मुबाहसे का मतलब बातों की तकरार, बहस, जिसे मुबाहसा कहते हैं। एक दूसरे पीर भाई बहस ना करें और ना झगड़े, ये पीर मुर्शिद को बिल्कुल पसंद नहीं है। पीर मुर्शिद के कलाम को रद्द ना करें। जो बात करते हैं पीर मुर्शिद उसको तुम्हारी फाइल में जमा करते रहें, हर बात को उसको निकाले ना, क्योंकि हर बात तुम्हारे लिए एक अंधेरी राह में एक रोशन मिसाल की मशल की तरह है। अगर हक मुरीद ही की जानिब से क्यों ना हो, एतकाद रखें कि पीर मुर्शिद की खता मेरे सवाब से बेहतर है। अगर पीर मुर्शिद के अंदर कोई खता नजर आए तो ये एतकाद रखें कि ये मेरे पीर से खता नहीं हुई है, बल्कि ये मेरे सवाब के लिए बेहतर है। और 20वां, पीर मुर्शिद के रूबरू बेहुदा बातें ना करें और ना ही किसी के उयूब बयान करें पीर मुर्शिद के सामने। अगर पीर मुर्शिद के सामने ही क्यों ना हो, किसी से भी जो है, किसी भाई के या किसी के भी अयूब जो है ऐब पेश ना करें। इसलिए कि हदीस मुबारक है, सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐब को किसी के पेश करने वाला तो वो जो है मुर्दार गोश्त, भाई के गोश्त के खाने के मुताबिक है। शेख के रूबरू बेहुदा बातें ना करें और ना किसी के ऐब को बयान करें। मुर्शिद के खुर्बतदारों और अजीजों से मोहब्बत और मोहत्तद रखें। खुर्बतदारों का मतलब है रिश्तेदार। पीर मुर्शिद जिसे अजीज समझते हैं, जिसे चाहते हैं, उनको भी तुम्हें चाहें और उनसे भी जो है ताल्लुकात अच्छे रखें, और उनके दोस्तों और उनके मुहिब्बों और नेस पीर भाइयों और तालिबों की रियायत करें और इनकी बदगोई और इसके मुखालिफों से दूर रहें। जो लोग पीर मुर्शिद के खिलाफ कहते हैं उनसे हमेशा दूर रहें, ताकि तुम्हें इस्तकामत हासिल हो। क्या कि तुम्हारा जो है तरीक के अंदर, सिलसिले के अंदर पीर मुर्शिद का कुर्ब हासिल करने में इस्तकामत, इस्तकामत के मतलब रुके रहना, इस्तकामत कहते हैं रुके रहने को। वरना जो है तुम दूसरों की बात सुनकर यकीन लाओगे तो तुम जो है तुम्हारा यहां से पत्ता कट जाएगा, खत्म हो जाओगे। 22वां, अपने अहवाल बातिनी अच्छे हो या बुरे हो पीर मुर्शिद के सामने अर्ज कर दें, क्योंकि मुर्शिद तईब रूहानी है, यानी कि तबीब है, तबीब रूहानी। इतला के बाद इस्लाह करें। तुम जो है अपनी बातों को बताने के बाद जो पीर मुर्शिद फरमाए उसको गौर से सुने, उसके ऊपर अमल करें, इस्लाह कर लें। मुर्शिद के कश्फ पर एतमाद करके सुकूनत ना करें। अब कुछ लोग हैं जो पीर मुर्शिद के कश्फ व करामत के ऊपर एतमाद भरोसा कर कर वहीं भी जाकर रह जाते हैं। सुकूनत का मतलब जाकर उनके कदमों में जगह मिल गई तो बस, वहां दरबार में वहां झाड़ने मिल गया तो बस। क्यों? यकीन पीर मुर्शिद के इल्म के ऊपर या पीर मुर्शिद के नजर के ऊपर, उनके फैज के ऊपर नहीं है, पीर मुर्शिद का कुर्ब हासिल करने पर नहीं है, उनका यकीन जो है कश्फ व करामत के ऊपर है। इसलिए वो पीर मुर्शिद के कदमों में या जो है वहां पर दरबार में जगह चाहते हैं कि उनका बेड़ा जो है पार हो जाए, उनके करीब रहने से इनकी तकलीफें आसान हो जाए, इनकी परेशानियां दूर हो जाए, इनकी तबीयत और सेहत अच्छी हो जाए। ये जो है यकीन और अकीदा गलत है।
पीरी मुरीदी के अंदर। हाँ, कोई बाहर वाला है, यकीन रखता है कि बुजुर्गान दीन से मेरी तबीयत अच्छी हो सकती है, कि सोहबत से मेरी परेशानियां दूर हो सकती है, वो बात अलग है। लेकिन मुरीद को ऐसा करना कि मैं पीरो मुर्शिद के कश्मो करामत देखने के बाद मैं उन्हीं का होकर उनके कदमों में रह जाना मैं चाहता हूँ, तो ये बात जो है, ताकि मुझे मेरे अंदर भी वो तासीर और असर आए, ये बिल्कुल गलत है। 23वां 23 ख्वाब में जो कुछ देखें पीर मुर्शिद की खिदमत में अर्ज कर दें। अगर इसकी ताबीर जहन में आए तो बयान करेंगे पीर मुर्शिद, वरना खामोशी इख्तियार करेंगे और उससे बहस व मुबासा न करें। ये बार बार ये ना पूछे मैंने जो ख्वाब आपको बताया था उसकी ताबीर क्या है। ये भी अदब है। 24वां तो विर्द वजीफा पीर मुर्शिद तालीम करें, उसको अपनाएं, उसके अलावा तमाम वजीफे छोड़ दें, ख्वाह वो अपनी तरफ से शुरू किए हों या दूसरे बुजुर्गों ने तुम्हें बताए हों, उन वजीफों को छोड़कर जो पीर मुर्शिद बताएं उसके ऊपर अमल करें। अलबत्ता आमाल मसनूना मुस्तस्ना है, यानी कि जो अमाल पीर मुर्शिद बताए हैं उसके ऊपर कायम रहे। 25वां पीर मुर्शिद के पास बैठकर वजीफा वगैरह में मशगूल ना हो। जब पीर मुर्शिद के सामने बैठते हैं उनके चेहरे को देखना ही इबादत है, और वहां बैठकर वजीफे पढ़ना सही नहीं है। अगर दीवार कोई आड़े है या पर्दा कोई आड़े है तो आप कुछ आपको पढ़ने की इजाजत है जी, ये भी अदब है। 26वां जो कुछ फैज़ बातिनी पहुंचे अपने पीर मुर्शिद के तुफैल से समझे। अगरचे ख्वाब या मुराकिबे में किसी अच्छे या अच्छे बुजुर्गों को देखा हो तो उनसे भी अगर कुछ फैज पहुंच रहा हो तो ये ख्याल करें कि ये मेरे पीर मुर्शिद का कोई लतीफा इस बुजुर्ग की सूरत में जाहिर हुआ है, यानी कि पीर मुर्शिद वो मेरे दूसरे, क्योंकि मुझे मेरे पीर मुर्शिद को देखने की मेरे आंखों में ताब नहीं है, इसके लिए मेरे ख्वाब में दूसरे बुजुर्गों की शक्ल में मेरे पीर मुर्शिद आए हैं, ऐसा समझो। 27वां पीर मुर्शिद का कलाम दूसरों के सामने इस कदर बयान करें जिस कदर लोग समझ सके। अब यहां पर क्या होता है, हमारे बताने का तरीका कुछ और होता है और वहां पर मुरीदैन जाकर दूसरों से हमारी बात को समझाने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो उल्टा हो जाता है। तो इसके लिए पीर मुर्शिद के कलाम दूसरों के सामने इस कदर बयान करें जिस कदर उन बातों को लोग समझ सके, जिस बात के बारे में ये गुमान हो कि आम लोगों की समझ से बाला है, यानी कि आम लोगों की समझ में हर बात नहीं आती है, तो आप अपने पीर मुर्शिद के बताए तरीके से बताएंगे तो शायद हो सकता है कि पीर मुर्शिद का तरीका अलग हो, तुम्हारा तरीका अलग हो, तो उससे कुछ बयान में आपसे बात करने में कुछ ऊंच नीच हो सकती है, क्योंकि बाज बातें सिर्फ खवास के लिए होती हैं, बाज बातें आवाम के लिए होती हैं। 28वां अगर मुर्शिद कोई मनसब या मर्तबे अता करें, नियामत अज़मा से अता करें, टोपी से अता करें, या बुलाकर तुम्हें जो है बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी उल्फत के साथ अपने खुर्ब सार में बिठाकर आपको कुछ अल्खाब से पुकारें तो दिलो जान से कबूल कर लें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला के यहाँ काबिलियत नहीं बल्कि कबूलियत करता है। तुम्हारी काबिलियत के ऊपर ऐसा नहीं करता हो पीरो मुर्शिद, लेकिन पीरो मुर्शिद जो है कुछ बनाना चाहता है,
وہ تمہیں قبول کر لیتا ہے، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ 29واں، اپنے پیر و مرشد کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے شیخ کی طرف بغض بیعت رجوع نہ کریں تاکہ سعادت مندی کی دولت سے ہٹ جاؤ گے۔ جو سعادت تمہیں تمہارے پیر سے ملی ہے وہ تمہیں نکل جائے گی۔ 30واں، پیر و مرشد دار فانی سے رحالت جب فرما جائیں گے تو اس کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کریں تاکہ تعلق روحانی باقی رہیں اور فاتحہ وغیرہ میں ان کے نام کو شرکت کرتے رہیں، اور صبح و شام ورد و وظائف جو بتاتے ہیں اس پر قائم رہیں، اور ان کے جو کچھ تعلیمات ہیں وہ تعلیمات پر ہمیشہ قائم رہیں۔ ایسا نہ سوچیں کہ میرا پیر و مرشد دنیا سے چلے گیا ہے تو مجھے دوسری طرف یعنی کہ دوسرے سلسلے طرف دوسرے کی طرف بیعت لینے کی ضرورت ہے۔ اگر تم عقیدہ اور یقین سچا رکھو گے تو ہر پیر کے اندر تمہارا ہی پیر تمہیں نظر آئے گا، ہر ولی کے اندر تمہارا ہی پیر تمہیں نظر آئے گا، اور کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی صورت میں تمہیں وہ تعلیم و تربیت تمہارے رہنے تک وہ جاری اور ساری رہے گی۔